जर्नी में बताना चाहूंगा क्योंकि ये आई गेस द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ वाज जॉइनिंग हनी सर एंड एलीट्स ग्रेड. Hello, Sankalp. A warm welcome to you on behalf of the entire EG family. So, how are you? Great, actually, it's a surreal feeling converting the dream college, which is IIM Bangalore. So right now, also, I'm feeling like it's a dream for me. So, Yeah. firstly, Sankalp, please introduce yourself by giving us an overview of your overall profile, percentile, and calls. So actually, I am right now currently a 2023 pass out computer science engineer, and I'm a fresher. And basically, coming to my academic profile, I would say I have 95 in my 10th, 93 in my 12th, and 93 in my engineering as well. And basically, the calls I've got was among the Blackie. I've got the call from IIM Bangalore, IIM Lucknow, IIM Indore, and apart from that, I've also got calls from IIM Shillong and Shillong in and MDI as well. And other colleges, I have also got calls from SABM Pune in SNAP, and in NMAT, I've also got calls from NMIMS Mumbai as well. Since you have converted IIM Bangalore already, so Yeah. how are you feeling now? And what was your reaction when you get to know that you have converted it? Yes, actually, basically my percentile is 98.7, and we know that the for top three colleges, which is IIM Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta, the general percentile which we hear around ourselves is like that the percentile which is required, right, which is most generally 99 plus. So getting a call from IIM Bangalore at 98.7 percentile, right, that was also a dream for me. That how come I have got the call, and basically उसके बाद मुझे लग रहा था कि now I need to convert this call because वो मेरी best call थी, which is IIM Bangalore. And so basically, the chances I thought that the chances were very less, but they were mentors like Hani sir as well. उन्होंने बोला कि percentile पे ध्यान मत दो, and you have got the interview call, so basically you deserve the seat. Just focus on the interview. So that was my take, and I converted my best call, which was IIM Bangalore. So that was the best that can happen to me. So that was my feeling. Yeah, Now, since you are a fresher, then yeah. I would like to know why did you decide to go for an MBA right after your college? Why not after working for 2 or 3 years? Yeah, actually, see, right now I would say that I come from a family of business. So मैंने अपने पापा को starting से business करते हुए देखा है, right? And basically, engineering was not my passion. I would say I did in the flow. But engineering के टाइम पे basically मैं ऐसा था कि मुझे पता था कि more or less I would like to go in masters. तो मैंने अपने academics course पे काफी ज्यादा ध्यान दिया. And during my third year, I got to know about the case study competition, जो कि बहुत सारे colleges organize कराते हैं. तो वो case study competitions को मैंने काफी seriously लिया, and basically me and my friends were there. वो प्रीटी सीरियस फॉर एमबीए, और मैंने उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और मुझे कंसल्टिंग, फाइनेंस, इन सारे डोमेन्स के बारे में पता चला इन माय थर्ड ईयर. और मैंने 3 नेशनल लेवल के केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स भी जीते, विच वर ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी खड़गपुर, आईएम काशीपुर एंड आईआईटी रुड़की एज वेल. तो वो बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए कि मैं बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट के साथ कम्पीट करके वो कॉम्पिटिशन्स में जीता हूँ. एंड और साथ ही साथ में मेरी इंजीनियरिंग भी चल रही थी, और आखिरी के 2 साल में मैंने अपना फैमिली बिजनेस भी आई गेस 2 साल में मैंने हैंडल किया. तो बेसिकली वहां पे मैं ई कॉमर्स के चैनल्स लाइक कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका, इनसे इंटरेक्ट कर रहा था. सो बेसिकली माय पर्सपेक्टिव वाज कि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग भी चल रही थी, और मेजर पार्ट एमबीए और बिजनेस का भी एक्सपोजर मेरे पास था, और बिजनेस एक्यूमेन आई थिंक आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय फोरफादर्स, राइट. तो वो मेरे साथ था, तो दैट वाज अ प्रीटी नेचुरल वे टू गो अहेड. और मैंने सोचा कि मुझे शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, एंड गोइंग एज अ फ्रेशर इन एमबीए विच बी द वो मेरे लिए बेस्ट पाथ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस एक्सपोजर है, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई वुड गो फॉर एन एमबीए. मतलब पहले से ही ऐसा था कि बिजनेस में ही जाना है। या चलो, तो जब तुमने डिसाइड करा कि मुझे प्रिपरेशन या करना है कैट एंड ओमेट्स के लिए, सो या एलिट्स ग्रिड को ही क्यों चुना तुमने एंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट? सो इसकी जर्नी में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आई गेस द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ वाज जॉइनिंग हनी सर एंड एलीट्स ग्रेड. सो तो इसकी कहानी ऐसी है कि मैंने कैट 2 बार दिया है. मैंने कैट 2022 भी दिया है, और कैट 2023 भी दिया है. दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. तो फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी है कि एक्चुअली उस टाइम मुझे इतना आइडिया था नहीं कि एलीट्स ग्रेड कोचिंग क्या है, और ये सब नहीं पता था मुझे. तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैंने सब कुछ ट्राई किया था. बेसिकली मैंने टाइम का मटेरियल मंगाया था, और वो उसको मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया. अरुण शर्मा की बुक से मैंने प्रैक्टिस की. और आई वुड से कि कैट के 4 महीने पहले मैंने अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, बिकॉज मतलब मैं मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर रहा था फर्स्ट ईयर में. वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ऐसा हुआ. और मैं मतलब जो भी वीडियो देख रहा है उसे बता दूं, मेरा पहला लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा परसेंटाइल 92 परसेंटाइल था, जिसमें मेरा एलआरडीआई में परसेंटाइल आई गेस 50 परसेंटाइल था, एंड वीआरसी में 88 परसेंटाइल था, क्वांट में आई वुड से 95 96 परसेंटाइल था. तो अब पहले साल की जर्नी ये हुई कि मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था कि आई वाज यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज. मैं सेल्फ प्रिपेयर के लिए टाइम मटेरियल की बुक्स भी मैंने यूज की, साथ ही साथ में मैंने फिर कुछ अरुण शर्मा की बुक्स भी यूज की, और कैट से 4 महीने पहले मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया.
तो प्रॉब्लम ये हुई कि मल्टीपल रिसोर्सेज यूज किए एंड उस चक्कर में मैं फंस गया कि यूट्यूब पे 4 घंटे में आप ये कवर कर लो, टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस, और इन सब चीजों में मैं फंस गया और मेरा कैट स्पॉइल हो गया। मैंने एफर्ट काफी डाला, मेरे 10 से 12 रजिस्टर्स के नोट्स बन गए थे, रिटन नोट्स बना लिए थे मैंने, और कंटेंट काफी कंज्यूम कर लिया था, पर एक सोर्स यूज नहीं किया था। तो कभी एक क्वेश्चन 5 तरह से पूछा जा सकता है, तो मैं 3 तरह तो पढ़ता था, पर जो 2 तरह के क्वेश्चन, 2 और तरह से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन, वो मैंने कवर नहीं किया था। तो ये मेरे से गलती हुई और कैट में मैं पैनिक कर गया और वो कैट मेरा खराब हुआ। एंड देन आई वुड से कि फिर मेरे पर सिर्फ कैट की कॉल्स आई थी उस टाइम पर, और मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। जनवरी में वापस से मुझे लगा कि नो, और आई वुड से कि कैट के 1-2 हफ्ते पहले मैंने एलीट ग्रेड का एक जो कोर्स चलता था उस टाइम की, आई वुड से वे टू आई एम सीरीज चलती थी, जहां पर सर 10 से 12 घंटे लग के LRDA के सारे सेट्स कवर कराते थे। तो वो मैंने 1 हफ्ते पहले डिस्कवर किया और उसमें मुझे पता लगा कि इफ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट ईयर कैट, आई विल डेफिनेटली जॉइन एलीट ग्रेड। फिर अगले साल की कहानी यही थी कि जनवरी में मैंने एलीट ग्रेड ज्वाइन किया, और जो मेरा पूरा नोट्स का भंडार था, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, वो सब मैंने अलग हटा के रख दिया, और एक भी रजिस्टर के नोट्स मैंने यूज नहीं किए। सिर्फ मेरा आईपैड था मेरे पास, और सिर्फ हनी सर की क्लासेस और नोट्स चली साल भर, और सिर्फ एक ही मेरा रिसोर्स रहा पूरे साल भर, और वही मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। एंड जैसे कि हम कैट की बात करें तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, राइट? तो आपके कौन से सेक्शन मतलब बहुत अच्छे थे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था आपका? कौन सा वीकर सेक्शन था, और आपने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप करा उसको टैकल करने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए? सो जैसे इस साल जो मेरी परसेंटाइल है, आई हैव गॉट द हाईएस्ट परसेंटाइल इन VRC व्हिच इज 99.57। एंड और जो मेरा सेकंड सेक्शन है व्हिच इज LRDI, व्हिच इज नॉट माय ग्रेट परसेंटाइल, आई हैव स्कोर्ड अराउंड 84-85 परसेंटाइल ओनली इन LRDI। एंड क्वांट में मेरा 96-97 परसेंटाइल था। तो मैं अगर सेक्शन वाइज बात करूं तो VRC मेरा लास्ट ईयर 88 परसेंटाइल था और इस साल 99.57 है। तो मैंने इसमें लिटरली काफी एफर्ट डाला है, और मुझे पता था कि VRC के लिए प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत सारी शॉर्टकट्स बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि आप RC के क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, फिर आप RC पे बाद में चले जाओ, ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट। बट आई नो दैट कि द काइंड ऑफ प्रेशर कैट में होता है, उन 40 मिनट्स में प्रेशर और कामनेस हैंडल करना, दैट इज द मेन टास्क, कि आपका ब्रेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ना जाए और आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने साल भर काफी ज्यादा रीडिंग की, जनवरी से लेके आई वुड से जुलाई अगस्त तक शहजाद सर जो आर्टिकल्स भेजते थे वो मैंने काफी डिलीजेंटली कवर किए। और उन आर्टिकल्स के साथ साथ जैसे मैंने काफी हाई क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़े, एंड एऑन जो हम पढ़ते हैं, राइट, दैट इज अ बेस्ट सोर्स व्हिच इज रिकमेंडेड बाय एवरीवन। साल भर में आई वुड से कि जितने भी आर्टिकल्स आए होंगे उसमें से 2 या 3 आर्टिकल्स को छोड़ के मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। और कैट के एक दिन जाने से पहले भी जो नया आर्टिकल आया था आई वुड से स्पेस से रिलेटेड, वो भी मैं पढ़ के गया था क्योंकि मेरा थर्ड स्लॉट था। तो अच्छा। वो मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया था कि नो, आई हैव टू रीड एऑन आर्टिकल, चाहे वो 3,500 वर्ड का आर्टिकल हो, चाहे 4,000 वर्ड का आर्टिकल हो, आई हैव टू रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। क्योंकि एक बेसिकली क्या होता है कि एल्गोरिथम डेवलप करनी होती है दिमाग के अंदर, कि एग्जाम में आपके सामने RC खुले, और देखो कई लोग सब तरह से सब लोग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 4 RC एंड VA के क्वेश्चंस हैं, तो कोई कहता है कि लाइक 2 RC एंड VA के क्वेश्चंस करो, 3 RC एंड VA क्वेश्चंस करो, पर एंड में आके मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं चारों के चारों RC करूंगा और VA क्वेश्चंस करूंगा, और मैं चारों RC में कोई भी प्रायोरिटाइज नहीं करूंगा कि 1 2 3 4, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट RC, जो मैंने कैट में भी एक्चुअली उस दिन किया, और यही हुआ मेरे साथ। और मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर RC की, मेरा आई वुड से रॉ स्कोर 47 के आसपास बना था। और उस समय मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेरा VRC उतना अच्छा गया है, बिकॉज मैं एक प्रोसेस को रिपीट करने की कोशिश कर रहा था, अपने दिमाग में एल्गोरिदम को रिपीट करने की कोशिश कर रहा था कि ओहो, ओके कि RC मेरे सामने आ गई है, आई नीड टू रीड द RC, कॉम्प्रिहेंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन 7 मिनट्स एंड देन प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि, पर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड से कि विदाउट योर बेसिकली स्टैमिना इन RC, आप उसको सेक्शन को इस नहीं कर सकते यूजिंग एनी शॉर्टकट। आप, या योर प्रैक्टिस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड बी बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ रीडिंग, दैट विल हेल्प यू एक्चुअली। So this is my say take on BRC. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर सीवी, मैंने देखा कि 10th 12th आप सब में टॉपर रहे हैं, ठीक है? तो आपके मतलब एकेडमिक करियर आपका बहुत अच्छा रहा है। तो हम्म मॉक्स का जर्नी आपका कैसा था? मतलब उसका हम्म। ग्राफ कंसिस्टेंट था, अपवर्ड स्लोपिंग था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, जिगजैग, व्हाटएवर, मतलब क्या था आपके लिए, आपके साथ कैसा रहा? ओके, तो बेसिकली मॉक की जर्नी तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा था, और उस समय मेरे को एक्चुअली मैं एक ही टेस्ट सीरीज ली थी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, विच वाज एम कैट। तो उस समय तो मुझे मॉक देने में ही डर लगता था। तो मैं अपनी मदर से डिस्कस करता था कि मैं मॉक देने में ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, कि मैं सिलेबस तो पूरा हो गया पर मैं कंफर्टेबल नहीं था। बट इस बार क्या हुआ कि एलिट ग्रिड के साथ हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था,
प्री हाँ, हाँ। सेक्शन वाला फुल लेंथ से पहले, लेट्स से 10 हुँ, मिनट हुँ। का टेस्ट, 15 मिनट का टेस्ट, 5 क्वेश्चन का टेस्ट, वो क्या होता है कि आपको एक्सपोजर दे देता है कि साइमल्टेनियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 5-5 क्वेश्चंस आप हाँ। प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी हुँ, हैबिट हुँ। बन जाती है वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस होने की। तो वो एक काफ़ी बिल्कुल। प्रोसेस था, ये नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और फिर मैंने सीधे 2 घंटे का मॉक दिया, नहीं। वो छोटे-छोटे 10-10 मिनट के टाइम जो होते हैं, वो धीरे-धीरे एक तरह की मैराथन आपको डेवलप करते हैं। तो दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट। और मॉक की जर्नी में बताऊँ तो आई गेस आई वुड से कि परसेंटाइल की तो कोई लोअर लिमिट नहीं है। नेगेटिव में भी मैंने एलआरडीआई में मार्क्स देखे हैं इस साल, -1, -2। आईएमएस के कुछ मॉक्स थे जो काफ़ी डिफिकल्ट थे, उसमें मेरा 0 भी आया था कैट के 2 महीने पहले, और तो मैंने वो सिचुएशन भी फेस की है। और वीआरसी में मेरा स्कोर आई वुड से थोड़ा नॉर्मल था, बट ये है कि हाईएस्ट परसेंटाइल व्हिच वाज़ 99.48 इन वन ऑफ द आईएमएस मॉक्स, और लोएस्ट परसेंटाइल आई वुड से 75-80 परसेंटाइल भी देखा है मैंने। बट हनी सर हर डिस्कशन होता था हमारे मॉक्स का, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आई वुड से मॉक के स्कोर से ज़्यादा मॉक का डिस्कशन और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर हम जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, वही हुँ, फैकल्टी अगर हमें मॉक का डिस्कशन में आगे बता रहा है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन उस असाइनमेंट के उस क्वेश्चन पे बना हुआ है, तो आपको रियलाइज़ हुँ, होता है कि नहीं आपने पढ़ा सब कुछ है, पर आपको रिवीजन होना चाहिए। ऐसा लेट्स से 4th असाइनमेंट का एक क्वेश्चन जो था वो उठ के सेम मॉक में आ गया। वो क्वेश्चन आप वहाँ नहीं कर पाए, पर वो आपको रियलाइज़ेशन वही फैकल्टी करा सकता है जिसने आपको साल भर पढ़ाया है, और आप उससे हुँ, हुँ, रिलेट कर पाओ कि नहीं इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, ये वही क्वेश्चन है और मैं इसे एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाया पर मैं कर सकता हूँ। तो वो रियलाइज़ेशन एग्ज़ैक्टली। आई वुड से स्कोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हुँ, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है आपकी जो भी आपने 7-8 मंथ में प्रिपरेशन की है। तो जर्नी तो आई वुड से किसी की भी स्मूथ नहीं होती है। आई वुड से कि बस यही है, कैट के 1 दिन पहले भी मैं एलआरडीए में पैनिक कर रहा था, पर जब जैसा कि हमें पता होता है कि ऑल वी नीड इज़ बेसिकली वन सेट टू बेसिकली क्रैक द एलआरडीआई, क्योंकि जैसे हनी सर हर हमेशा कहते थे कि एलआरडीआई आपका सिलेक्शन नहीं कराता पर आपको रिजेक्शन ज़रूर दिला देता है। हुँ, तो दैट इज़ द सेम। तो ऐसी ही रही है, अप्स एंड डाउन वाली जर्नी रही है, बट आई वुड से प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी ही दैट्स ट्रू। इम्पोर्टेंट है आई वुड से फॉर मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओमेट्स। तो ओमेट्स के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर करा? नो एक्चुअली मैंने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया अलग से, सिर्फ हनी सर की गाइडेंस थी, और मुझे ये भी पता था कि एलिफेंट जॉइन करने से पहले जब हनी सर से बात हुई थी मेरी कॉल पर, तो उन्होंने कहा था कि हमारी एक टाइमलाइन सेट है। प्रॉब्लम हुँ, हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ मैंने देखी है जो ईजी का पार्ट नहीं थे। होता क्या हुँ, है हुँ, कि सारे के सारे ओमेट्स वो एक ही मंथ में बच्चे देते हैं। लाइक इन आपने नवंबर में कैट दिया लास्ट संडे को, एंड आपका एनमैट, आपका स्नैप, आपका जैट वो लाइंड अप होता है। तो हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि हम एनमैट का पढ़े, हम स्नैप का पढ़े या जैट का पढ़े। हुँ, अब हुँ, ये हुँ, प्रॉब्लम की पूरी सॉल्व हो गई थी एलिट्स ग्रिड जॉइन करने के साथ, क्योंकि हनी सर पहले ही बोल देते हैं कि लेट्स से आपको नवंबर के लास्ट संडे को आपको कैट देना है, और हम लोग अक्टूबर में ही एनमैट देंगे, और हुँ, उसके हुँ, 15-20 दिन पहले एनमैट की स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। हुँ, एंड हुँ, एनमैट जैसे ही खत्म होता है आपको एक एग्जाम का सर बोलते हैं कि जैसे आपको एक बेसिकली आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है एनमैट का। फिर हुँ, उसके हुँ, बाद कैट होता है, हम लोग कैट पे शिफ्ट होते हैं, फिर हम लोग एनमैट पे शिफ्ट हो स्नैप पे शिफ्ट होते हैं, फिर हम ज़ैट पे शिफ्ट होते हैं। तो प्रॉपर्ली जब एक फैकल्टी के साथ फैकल्टी ही आपको स्ट्रैटेजाइज़ बताता है कि नाउ वी नीड टू शिफ्ट ट्रू। फॉर एनमैट देन कैट, तो वो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाती है। आपको कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, लेट्स से पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटीज़ सब एग्जाम्स में आती है, पर उसका हुँ, वेटेज हुँ, ओमिट्स में बढ़ जाता है। पर अगर आपके हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उन आपको ओमिट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी हुँ, फैकल्टी ने हुँ, आपको प्रॉपर्ली तरीके से कराया है। तो आई वुड से कि जस्ट फॉलोइंग वन सोर्स इट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, जहाँ पे मैं सारे ओमेट्स को भी अच्छे से टैकल कर पाया, जहाँ पे मैं एनएमआईएमएस मुंबई भी मेरा आया एंड एसआईबीएम पुणे भी मैंने कन्वर्ट किया, तो हुँ। वो एक बेस्ट चीज़ रही। तो आपने ओमेट्स के लिए भी एलिट्स ग्रेड को ही जॉइन करा था एंड या उसको या फॉलो करा। या ऑलराइट। श्योर। तो एट लास्ट आप कोई एक एडवाइस या कोई मैसेज जो ऑल फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जिसको वो फॉलो करके अच्छा स्कोर ला सके कैट में? आई वुड से कि एक ही स्ट्रैटेजी है कि बेसिकली बिलीव इन योर एफर्ट्स, एंड हुँ, दूसरी हुँ, चीज़ ये है कि हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं नॉइज़ बहुत होता है। यूट्यूब में, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी बहुत सारा नॉइज़ होता है, आपके पीयर्स होते हैं, वो आपको 5 सोर्सेज़ बता रहे होते हैं, 5 तरह की हुँ, बात कर रहे होते हैं। बट आपको 2 चीज़ों पे विश्वास रखना है, बेसिकली फर्स्ट इन योर फैकल्टी जो भी आप जॉइन कर रहे हो, कि यू नीड टू हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट कि हाँ, हमने एलिट हुँ, रैंक जॉइन किया है तो दैट इज़ द बेस्ट एंड वी बिलीव इन द फैकल्टी एंड आवरसेल्फ। तो आपको अपने आप पर भी विश्वास रखना है और फैकल्टी पे भी विश्वास रखना है, दैट्स इट। ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट उतना ही करो एंड रिसोर्सेज लिमिटेड रखो और प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आप जैसे सर कहते थे कि आप रात को सो रहे हो, तो आपने लेट्स से आपने दिन में जो भी एफर्ट डाला है, वो आपको रात को रिकॉल होना चाहिए कि ना टुडे कि आज मेरे पास लेट्स से 3 घंटे थे और वो 3 घंटे मैंने मैक्सिमम थ्रूपुट या फिर मैंने आउटपुट निकाला। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जब ये आप कंसिस्टेंटली 7-8 महीने करोगे, तो फिर आपको वो मेहनत का रिजल्ट उस दिन डेफिनिटली मिलेगा। आप जैसे आंसर्स बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपने ईजी और उनसे फैकल्टीज़ को कुछ ज़्यादा ही डेडिकेशन के साथ फॉलो करा है एक्चुअली एंड यस, यस, डेफिनिटली। या हनी सर को मैंने बहुत सारे मैसेजेस डाले हैं और कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, और कई बार रोते हुए भी वॉइस नोट्स डाले हैं और रिप्लाई भी आया है सर का, तो वो मैंने पूरी जर्नी वो फेस की है, और डेफिनिटली शायद वो नहीं होते तो शायद ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो डेफिनिटली डेफिनिटली आई आई या ओwe इट टू।
और रिजल्ट भी आपका इतना अच्छा हुआ उसके वजह से ही। या डेफिनेट वो प्रोसेस का ही रिजल्ट मिला कि शायद इतने आई वुड से कि नॉट दैट ग्रेट परसेंटाइल पे भी मैं एक इतना अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर पाया एंड एज अ फ्रेशर एज वेल बिकॉज बैंगलोर में वर्क वेटेज सबसे ज्यादा होता है एंड आई वुड से 10-15% ही बैच फ्रेशर है, तो एज अ फ्रेशर घुसना मेरे लिए और ज्यादा आई वुड से कि मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ उस चीज के लिए कि लक ने भी मेरा कहीं ना कहीं साथ दिया। At last, congratulations again and thank you for joining in. All the best for your future. Bye bye. थैंक यू, थैंक यू।